kings, farmers and the towns. The first chapter was related to the Harappan civilization, and now this is the second chapter, and it's all about the post-Harappan period, that what changes took place, especially the period which we have taken, that is 600 BCE to 600 CE. So almost it is about 1200 years time. So a lot of changes took place in this 1200 years of time, and the chapter is about the political and social changes that took place in India. Thereafter, the next chapter, that is also about this period, and the last chapter is also about this period. So rest of the three chapters of the first book are all about the 600 CE to 600 BCE. Now, developments in the post-Harappan civilization. So what kind of development took place, that we will discuss over here. There were several developments that took place in India during the long span of 1500 years following the end of Harappan civilization. So Harappan civilization declined. There were many reasons and they have been discussed in chapter 1. Thereafter many changes took place in the Indian subcontinent. The first change was that Rig Veda was written by the people who were living near the river Indus, and Rig Veda is the oldest book of Hinduism. That was the first Veda. There are 4 Vedas: Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda and Atharva Veda. So Rig Veda was the first one. Agricultural settlement emerged in many parts of India. Earlier there was agriculture only around the river Indus, but now the people of river Indus shifted to other areas. As a result, the agriculture was also started in other areas, fertile valleys of entire Indian subcontinent. Then emergence of new mode of disposal, dead like megaliths in the central and south India. Now the dead persons used to be buried, and there used to be monuments which were erected on these dead people's graves, and these were known as the megaliths. So what are the megaliths? These are the large stone structure which were generally indicate the burial of a person. So these were the megaliths, and they were mainly erected in the south and central India. Why in south and central India? Because this was a hilly area and large stones can be available in these areas. As a result, megaliths are generally found in the central India or in the south India. Then at the same time, new towns and kingdoms also appeared on the entire Indian subcontinent. Then Princeps and Piyadasi. You can see that this is a coin and it is of 1840. 1840. At that time the British rule was there in India. So this coin was also minted during the British time, and this is an image of an officer of British East India Company, and his name was the James Princeps. So he had also contributed a lot to know about the ancient kingdoms of India. So we will discuss about his contribution. So the heading is Princeps and Piyadasi. Piyadasi stand for Priyadarshi. Priyadarshi means the person who is pleasant to behold. जो देखने में सुंदर लगे, देखने में अच्छा लगे. So Princeps and Piyadasi, उनका क्या relation था? That we will discuss here. Momentous development take place in Indian epigraphy. So epigraphy is the study of ancient inscription. जो पुरानी इंस्क्रिप्शन है उनको पढ़ने की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं? एपिग्राफी. सो दिस पर्सन, हिज नेम वाज जेम्स प्रिंसेप एंड ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन दिस एपिग्राफी. जेम्स प्रिंसेप इंटरप्रेटेड द मीनिंग ऑफ ब्राह्मी एंड खरोस्ती. सो ब्राह्मी और खरोस्ती क्या थी? दीज वर द 2 लैंग्वेजेस, एंड दीज लैंग्वेजेस यूज्ड टू बी स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. मेनली इन ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया ब्राह्मी लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शन, but in the western part of India it was Kharosthi language which was used for writing the inscription. Most of them mentioned king referred to as Piyadasi. So उसमें एक राजा का जिक्र है जिसका नाम है पियादसी. पियादसी मीन्स प्रियदर्शी, यानी कि जो देखने में सुंदर हो, और कई जगह पे उसका नाम अशोका भी मेंशन्ड है. सो ये जो 2 स्क्रिप्ट की हम बात कर रहे हैं, वन इज ब्राह्मी, सेकंड इज खरोस्ती. इन दोनों स्क्रिप्ट्स में राजाओं का वर्णन है कि ये इंस्क्रिप्शन किसी राजा ने लिखाई है. कहीं पर उसका नाम पियादसी लिखा हुआ है, कहीं पर उसका नाम अशोका लिखा हुआ है. अंडरस्टैंड? सो जहाँ पे अशोका लिखा हुआ है उसको प्रियदर्शी से कंपेयर किया गया,
एंड इंस्क्रिप्शंस आर ऑलमोस्ट द सेम। एज ए रिजल्ट वी इन्फर्ड, हमने ये निष्कर्ष निकाला कि ये दोनों राजा एक ही हैं। अंडरस्टैंड? सो अशोका का ही दूसरा नाम क्या है? पियादसी। कई जगह इसका नाम देव नाम पियादसी लिखा हुआ है, यानी कि देवताओं को प्रिय अशोक। फोकस ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, कनेक्शन बिटवीन द पॉलिटिकल चेंजेस एंड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल चेंजेस जो 600 से BC से 600 CE के बीच में हुआ, यानी कि 1200 साल में क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस हुए और क्या क्या सोशल चेंजेस हुए, इसके बारे में इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हो, ये दो इमेजेस हैं। ऊपर की इमेज किस स्क्रिप्ट में है? ब्राह्मी। सो आप देख सकते हैं इट इज ऑन द स्टोन सरफेस, द लेटर्स आर एनग्रेव्ड। तो दिस इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड इट वाज आल्सो इंस्क्राइब्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। सेकंड इज खरोस्ती। खरोस्ती वाज मेनली रिटन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। Which part of India is called northwestern part? The area around Pakistan and Afghanistan, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान पहले भारत का हिस्सा थे, तो उसके आसपास का जो इलाका है उसके अंदर इस स्क्रिप्ट का यूज हुआ है। और ये स्क्रिप्ट जो है ग्रीक स्क्रिप्ट के काफ़ी क्लोज है, तो बाद में ग्रीक की हेल्प ली गई इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए। तो ये दो स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी और खरोस्ती, और इन दोनों को समझने में मदद किसने की? जेम्स प्रिंसेप ने। इसीलिए उसका हेडिंग क्या था? प्रिंसेप एंड पियादसी। प्रिंसेप स्टैंड फॉर जेम्स प्रिंसेप हु वाज अ मिंट ऑफिसर इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड पियादसी स्टैंड फॉर प्रियदर्शी मीन्स अशोका, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप का जो मुख्यतः रिसर्च था वो किस पे था? अशोका पे था। देन इसके अलावा क्या क्या चेंजेस थे? इंक्रीज यूज ऑफ आयरन। हमने पढ़ा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में किसका यूज होता था? कॉपर का और ब्रोंज का। आयरन तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था। कॉपर कहाँ से जाता था? खेतड़ी माइन से। लेकिन अब क्या डिस्कवर हो गया था? आयरन। एंड आयरन वाज यूज्ड टू द मच एक्सटेंट देन द कॉपर। कॉपर से ज़्यादा यूज किसका हो गया? आयरन का हो गया था। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज। कॉइन्स वर आल्सो इशूड दिस टाइम। कॉइन भी इस टाइम इश्यू होने शुरू हो गए थे। उससे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमारे पास कोई कॉइन का जो है प्रूफ हमें नहीं मिला, लेकिन इस टाइम पे कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा मिंटेड होने इंडिया में शुरू हो गए थे। एमरजेंस ऑफ अर्ली स्टेट एंड द सिटीज़। नए नए जो है स्टेट बन गए थे, नए नए सिटी डेवलप हो गए थे, उनके अंदर किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था, दैट वी विल ऑल रीड इन दिस चैप्टर। न्यू रिलीजन। इसी दौरान, इसी पीरियड के अंदर जो 1200 साल का पीरियड हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें दो धर्म भी आए थे, एक बुद्धिज्म, दूसरा जैनिज्म। तो वो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 4, दैट इज ऑल अबाउट द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब ये देखिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट मैप ऑफ महाजनपदा। तो कितने महाजनपद थे? देयर वर टोटल 16 महाजनपदाज, और ये 16 महाजनपद महाभारत में भी इनका जिक्र मिलता है। एंड व्हाट आर दीज 16 महाजनपदाज? जैसे कि ये है गंधारा, इसकी कैपिटल क्या है? तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पड़ती है? इट इज नाउ इन पाकिस्तान। कुरु, कुरुक्षेत्र के आसपास का इलाका, इसकी कैपिटल कहाँ है? हस्तिनापुर। Later on the capital was also shifted to Indraprasth and Indraprasth is present Delhi. Then पंचाल, जहाँ से द्रौपदी बिलोंग करती थी, इन वेस्टर्न यूपी। कौशाला, काशी के आसपास का इलाका, काशी नरेश का भी जिक्र जो है महाभारत में आता है। Then comes अंगा इन वेस्ट बंगाल। Then मगधा इन बिहार, अवंती मध्य प्रदेश, चेडी अगेन इन मध्य प्रदेश, so the Matsya in Rajasthan. So these are the important महाजनपदास and total number of महाजनपदास were 16. So कुछ एक इसमें मोनार्कियल फॉर्म में थे, कुछ एक में जो है रिपब्लिक नेचर ऑफ गवर्नमेंट होती थी, ओलिगार्की होती थी। ओलिगार्की क्या होता है? जहाँ पे एक काउंसिल ऑफ एल्डर्स जो होती है किसी कंट्री को रन करती है, दैट इज कॉल्ड ओलिगार्की। तो कई जगह पे ओलिगार्की थी, कई जगह पे जो थी मोनार्कियल सिस्टम था, जहाँ पे राजा उसके बाद में उसका बेटा राजा बनता था, जैसे कि हस्तिनापुर वगैरह में था। कौरव पांडव की कहानी आपने सुनी होगी। अंडरस्टैंड? सो देयर वर टोटल 16 महाजनपदाज। इनमें से कोई महाजनपद एग्जामिनेशन में भी एज ए मैप पूछा जा सकता है। और इसके साथ में सिटीज भी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो इसमें एक महाजनपद सबसे इंपॉर्टेंट हुआ था और उसका नाम था मगध। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
सो फीचर ऑफ महाजनपद। अब ये महाजनपद कैसे थे, इनकी फीचर्स क्या क्या थी। महाजनपदाज, जनपद क्या होता है, जनपद प्रेजेंटली इट इज कॉल्ड ए डिस्ट्रिक्ट इन यूपी एंड सम अदर स्टेट्स। सो महाजनपद मीन्स बड़ा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से बड़ा एरिया, जहाँ पे मीन्स छोटी छोटी किंगडम होती थी, उनके अपने राजा होते थे, उनकी अपनी कैपिटल होती थी, तो उनको क्या बोलते थे हम, महाजनपदाज। द 6th century BCE known as the 16 Mahajanpadas. These states were either ruled by the king or the ganas that we have discussed. Sanghas or oligarchy system was there. Each had its own capital. हर एक की अपनी एक राजधानी होती थी. Some states maintained permanent standing armies and some were having the conscripted armies. So permanent army और conscripted army में क्या फ़र्क है। परमानेंट आर्मी वो आर्मी होती है जिसके अंदर सोल्जर्स को परमानेंटली डेप्यूट किया जाता है, उनको रेगुलर सैलरी मिलती है। कुछ एक आर्मी होती है वो मिलिशिया पे डिपेंड करती है। मिलिशिया क्या होता है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो पीजेंट्स को आर्मी बना ली जाती है और लड़ाई होने के बाद भी उसको डिसबैंड भी कर दिया जाता है। सो देयर वर 2 काइंड ऑफ आर्मीज। देन कम्स धर्मसूत्रा। उस टाइम पे एक पुस्तक भी लिखी गई थी जो ब्राह्मणों ने लिखी थी, जिसका नाम था धर्मसूत्र। सो धर्मसूत्र वॉज द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ह्यूमन बींग, फॉर द किंग एंड फॉर द ऑर्डिनरी पीपल। राजा कैसा बिहेव करेगा, आम लोगों का कंडक्ट क्या रहेगा, उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था धर्मसूत्राज। फंक्शंस ऑफ द रूलर वर टू कलेक्ट द टैक्सेस। तो राजा का जो इसमें जिक्र किया गया है कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है, सो दैट ही कैन रन दी गवर्नमेंट और ही कैन रन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ किंगडम। एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम पीपल, और लोग उसको चंदा भी दे सकते हैं। सो दीज वर द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द किंग, जो कि धर्मसूत्र के अंदर मेंशन किया गया है। देन अब हम बात करेंगे मगध की। सो आउट ऑफ दी 16 महाजनपदास, मगध बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद। सो व्हाई मगध बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद, दिस क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो वी विल डिस्कस द फीचर्स दैट हैज मेड मगधा द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदा। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टाइल सॉइल। मगध जो है प्लेन एरिया में पड़ता है, बिहार के आसपास, और वहां पे रिवर कौन सी है, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। सो दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ फर्टाइल सिल्ट, और उन सिल्ट की वजह से एरिया जो है वो काफ़ी प्रोडक्टिव है। दैट इज़ फर्स्ट रीजन, इसलिए यहाँ पे खेती अच्छी होती है। दूसरा है चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। गंगा नदी बहती है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी किया जा सकता है, वहाँ से लोग एक दूसरे पे आ जा सकते हैं, तो कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो वो सेकंड इसकी फीचर थी जिसकी वजह से मगध इंपॉर्टेंट बना। थर्ड है पाटलिपुत्र विच वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा, और वो गंगा नदी के किनारे है, तो उसके थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन काफ़ी आसानी से हो सकता था। पहले इसकी कैपिटल थी राजगीर, क्या नाम था, राजगीर, और इट इज़ आल्सो नोन एज दी राजमहल। राजमहल की पहाड़ियाँ अभी भी है झारखंड और बिहार के अंदर। तो राजा का वहाँ पे महल था, लेकिन एक राजा हुए थे मगध के अंदर जिसका नाम था अजातशत्रु। उसने इस कैपिटल को जो है राजमहल की पहाड़ियों से शिफ्ट करके कहाँ पे ले गया, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे कहाँ पड़ती है, पटना के अंदर, जो कि आज बिहार की कैपिटल है। अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट। अब एलिफेंट का क्या रोल था, एलिफेंट वॉज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द आर्मी। एलिफेंट आर्मी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, और आर्मी के अंदर एलिफेंट की ज़रूरत होती थी। तो झारखंड और बिहार का जो इलाका है, इट इज़ अ हैवीली फॉरेस्टेड एरिया, तो वहाँ से इनको क्या मिल जाता था, एलिफेंट भी इनको मिल जाते थे, तो जिसकी वजह से इनकी आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। राजगीर मैंने बता दिया, ओल्ड कैपिटल ऑफ मगधा वॉज लोकेटेड अमंग द हिल्स एंड पावरफुल एंड एम्बिशियस रूलर। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है यहाँ के राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्म नंदा, अजातशत्रु। सो ये सारे के सारे जो राजा थे काफ़ी इंपीरियल नेचर के थे, एंड दे ट्राई टू एक्सपेंड देयर एम्पायर, और इसकी वजह से आसपास के जो नेबरिंग स्टेट थे उनको इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी वजह से मगध जो है लगातार एक्सपेंड होता चला गया, और मगध एक बड़ा राज्य और एक महत्वपूर्ण राज्य इंडिया का बन गया था। और सबसे बड़ा एम्पायर जो था भारत का जो आज तक बना है, दैट इज़ मौर्यन एम्पायर, और ये किसके टाइम था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। सो मौर्यन एम्पायर वॉज आल्सो हैविंग इट्स कैपिटल इन पटना, वो भी मगध का ही राजा था। देन यू कैन सी दैट दिस इज द इमेज ऑफ प्रेजेंट डे राजगीर। ये पहाड़ी के ऊपर कुछ एक रिमेन्स अभी भी उसके जो है महल के अवेलेबल हैं, और ये राजगीर की पहाड़ी है। राज प्लस गिर, गिर मीन्स माउंटेन, राज मीन्स राजा का माउंटेन, क्योंकि यहाँ पे राजमहल बना हुआ था राजा का। देन यू कैन सी दैट
जो पुराना अवध जो मगध जो था वो इतना ही था, एक छोटा सा महाजनपद था। धीरे धीरे इन्होंने जो है चारों तरफ अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया और ये पूरा पूरा जो है एंटायर इंडिया में ऑलमोस्ट इतने हिस्से में ये जो है मगध एम्पायर फैल गया था। किसकी वजह से फैला? जो फैक्टर हमने डिस्कस किए उनकी वजह से। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहाँ की आर्मी और वहाँ के राजा थे। ये देख सकते हो आप, ये जो है मैक्सिमम एक्सटेंशन जो था मगध का उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो म्यांमार से लेके अफगानिस्तान तक, और नीचे जो है साउथ इंडिया का कुछ हिस्सा छोड़ दो, बाकी पूरा इंडिया जो है इसके कब्जे में होता था। और ये अशोका के टाइम इतना बड़ा मगध एम्पायर होता था। इसकी कैपिटल यहाँ पे थी पाटलिपुत्र। अब इतने बड़े मगध राज्य को वो कैसे कंट्रोल करते थे, हाउ दे यूज टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वी विल डिस्कस हियर। क्योंकि इतने बड़े राज्य में सपोज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो राजा यहाँ है तो इससे काफ़ी दूर है, इट टेक्स ऑलमोस्ट 20 days और 1 month टू रीच देयर। और यहाँ से यहाँ पे हो जाती है कोई प्रॉब्लम तो यहाँ से पहुँचने में भी बहुत टाइम लगता है। तो एक राजा जो यहाँ बैठा हुआ था इन सारे चीज़ों को कंट्रोल कैसे करता था, वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मगधा। नाउ अब हमें मगध के बारे में जो पता चलता है वो किन किन सोर्सेज से पता लगता है कि व्हाट इज द फीचर ऑफ द मगधा, हु वर द रूलर्स, और उन्होंने क्या क्या काम किया, मगध को कंट्रोल कैसे किया जाता था। तो कुछ एक हमारे पास सोर्सेज हैं। कुछ सोर्सेज हैं मटेरियल सोर्सेज, दो तरह के होते हैं मेनली। मटेरियल सोर्सेज इंक्लूड्स द ओल्ड ruins ऑफ द बिल्डिंग्स, इंस्क्रिप्शंस, दीज आर दी मटेरियल सोर्सेज। लाइक सारनाथ में अशोक चिन्ह स्तंभ है तो दैट इज अ मटेरियल सोर्स। इसके अलावा हमारे पास दूसरे सोर्सेज जो हैं दैट इज लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में क्या आता है आपका लिखा हुआ, ये इंस्क्रिप्शन भी हो सकता है, ये कोई बुक भी हो सकती है, कोई लेटर भी हो सकता है राजा का। तो दीज आर कॉल्ड एज दी लिटरेरी सोर्सेज। तो दोनों से हमें जो है हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद मिलती है। सो फर्स्ट अकाउंट्स ऑफ मैगस्थनीज। अब मैगस्थनीज कौन था? ही वॉज अ ग्रीक राइटर हु केम टू इंडिया अलॉन्ग विद अलेक्जेंडर, जो कि अलेक्जेंडर मीन्स सिकंदर, उसने भारत पे आक्रमण किया था 326 BC के अंदर। और उसने भारत में एक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइक पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रीजन ही स्टार्टेड रूलिंग देयर। उसके बाद में उसके डिसेंडेंट ने वहाँ पे रूल किया था। तो उस टाइम वहाँ पे एक राइटर आया था जिसका नाम था मैगस्थनीज एंड ही वॉज अ ग्रीक राइटर। सो ही रोट ए बुक ऑन इंडिया, उसका नाम है इंडिका। क्या नाम है उसका? इंडिका। एंड इन दिस ही रोट अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया। तो हमें उस टाइम का पता इससे चलता है। दूसरी बुक है अर्थशास्त्र, और ये किसने लिखी थी? इट वॉज रिटन बाय कौटिल्य, और वी कैन से दैट चाणक्य। इसलिए इससे भी हमें पता चलता है। इसके अलावा बुद्धिस्ट, जैना, पुराणिक लिटरेचर जो उस टाइम पे लिखे गए जैसे धर्मशास्त्र, धर्मसूत्राज, बुद्धिज्म भी आ गया था। बुद्धिज्म के अंदर बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं सुत पिताका और विनय पिताका के अंदर। और इसके अलावा रॉक्स और पिलर इंस्क्रिप्शन जो अशोका ने लिखवाए थे उससे हमें पता चलता। तो ये सारे के सारे लिटरेरी सोर्सेज हैं। और उसमें जो है मेनली उन्होंने रॉक्स पे और पिलर्स पे इंस्क्रिप्शन करवाया था। इसके अलावा उसने जो इंस्क्रिप्शन लिखा था वो धर्म के बारे में लिखा था। धम्मा मीन्स धर्म, दैट व्हाट काइंड ऑफ रिलीजन अ किंग शुड हैव एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दैट रिलीजन। और धम्मा में मेनली उसने बुद्धिज्म के बारे में लिखवाया था। किसके बारे में? बुद्धिज्म के बारे में। बिकॉज अशोका टर्न टू बी अ बुद्धिस्ट इन द लेटर स्टेज ऑफ हिज लाइफ। हमने बात की कि एम्पायर बहुत बड़ा था तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर ऑफ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। सारी की सारी पावर राजा के हाथ में होती थी। ही वॉज द एब्सोल्यूट रूलर। लेकिन इसके बावजूद भी इतने बड़े राज्य को संभालना इतना आसान काम नहीं था। द किंग वॉज हैविंग द एब्सोल्यूट पावर। राजा के पास असीमित शक्तियाँ थी, सारी की सारी शक्ति राजा के पास थी। लेकिन इसके अलावा भी उसने जो है कुछ एक प्रोविंशियल सेंटर बनाए हुए थे। प्रोविंसेस थे, अलग अलग स्टेट थे, और उनको जो है गवर्न करने के लिए प्रोविंशियल सेंटर्स बनाए गए थे। और कितने प्रोविंशियल सेंटर्स थे? 5 प्रोविंशियल सेंटर्स थे। प्रोविंशियल सेंटर्स कैसे होते थे कि अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जगह पे सिटीज़ बनाए होते थे, और वहाँ पे एक गवर्नर होता था जो कि उस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, और उस एरिया का सारा एडमिनिस्ट्रेशन वही गवर्नर देखता था। जैसे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिंदुसार वॉज द फादर ऑफ अशोका। उस टाइम जो प्रोविंशियल सेंटर था एक उज्जैन, और उज्जैन का गवर्नर अशोक था। दूसरा था तक्षशिला का जो गवर्नर था उसका बड़ा भाई था।
तक्षशिला पड़ता है पाकिस्तान की साइड। सो पूरा एरिया पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो है तक्षशिला से कंट्रोल होता था। और उज्जैन जो था वो सेंट्रल इंडिया को कंट्रोल करने का काम करता था। साउथ की साइड में स्वर्णगिरी होती थी। स्वर्णगिरी मीन्स गोल्डन माउंटेन्स, जहाँ पे कोलार गोल्ड माइंस थी इन कर्नाटका, वहाँ पे एक गवर्नर होता था। उड़ीसा का रीजन जो था तोसाली से देखा जाता था। एंड जो पूरा बाकी कैपिटल के आसपास का जो इलाका था दैट वाज गवर्न फ्रॉम पाटलिपुत्र। सो देयर वर 5 प्रोविंशियल सेंटर्स जहाँ से पूरे राज्य को गवर्न किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था। इसके अलावा जैसे ये लिखा हुआ है पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली एंड स्वर्णगिरी। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड काफ़ी ज़्यादा था उस टाइम। सो हाउ द ट्रेड यूज टू बी कंट्रोल्ड एंड हाउ द सेफ्टी वॉज प्रोवाइडेड टू द ट्रेडर्स, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो इसके लिए उन्होंने क्या बना रखा था, देयर वर 6 सब कमिटीज एंड दीज सब कमिटीज वर डिसाइडेड द वेरियस काइंड ऑफ अफेयर एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज थिंग्स। लाइक जैसे आर्मी के अंदर 6 कमेटीज थी, उनमें से कौन क्या क्या करता था। उसमें से जैसे सम लुक्ड आफ्टर द नेवी, जो कि क्योंकि रिवर के अंदर से ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ज़्यादा होता था तो उसको देखने का काम करते थे। कुछ इन्फेंट्री को देखने का काम करते थे, कुछ घुड़सवार सेना कैवलरी को देखते थे, कुछ चैरियट्स जो होते थे यानी कि रथ होते थे उनकी जो है देखभाल करते थे, और एक आर्मी का हिस्सा जो है एलिफेंट की देखभाल करता था, और यही ट्रेडर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। इसके अलावा कुछ एक जो कमेटी होती थी, जैसे सेकंड कमेटी है दैट यूज टू अरेंज द बुलक कार्ट। बुलक कार्ट में क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन होता था। इसके अलावा फूड जो आर्मी को सप्लाई होता था उसको देखने का काम करते थे। फॉर्डर जो एनिमल्स जो थे आर्मी के अंदर उनको सप्लाई करने का काम ये सेकंड कमेटी करती थी। तो इट वाज ए वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसके आज के दिन जो आर्मी सप्लाई कोर या सर्विस कोर का जो काम होता है वो सेकंड कमेटी करती थी। इसके अलावा मेजर्स ऑफ टू कोऑर्डिनेट द एम्पायर, कुछ एक और जो है तरीके भी उसने अशोक ने एम्प्लॉय किए थे, अप्लाई किए थे, जिससे जो है पूरे राज्य को वो कंट्रोल करने का काम करता था। और वो तरीके क्या थे, उसने धर्म को भी जो है राज्य को कोऑर्डिनेट और कंसोलिडेट करने में यूज किया। लोगों को जो है एक धर्म में बदला, वो धर्म था बुद्धिज्म, और धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया ताकि उनका फेथ राजा में बना रहे और राज्य जो है सुरक्षित रहे। इसके लिए उन्होंने एक ऑफिसर को भी एम्प्लॉय किया था और जिसका नाम था धमा महामता, जिसका काम था धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठे रखना ताकि कोई रिबेलियस लोग वहाँ पे ना हो और पूरा एम्पायर जो है वो सुरक्षित रहे। सो दीज वर सम मेजर्स विच वर टेकन बाय अशोका एंड अर्ली रूलर्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। किस तरह से वो राज्य को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करते थे। हाउ इम्पोर्टेंट मौर्यन एम्पायर वॉज। अब मौर्यन एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा कि मौर्यन एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर था इंडिया का, लेकिन ये ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला था। इट रिमेंड ओनली फॉर 150 ईयर्स। सिर्फ कितने साल रहा था, 150 साल। लेकिन ये छोटा सा जो 150 साल का पीरियड था इसको इंडिया का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इससे बड़े बड़े एम्पायर तो बहुत ज़्यादा इंडिया में रहे हैं। मुगल्स थे, इसके अलावा चोलास थे, लेकिन इस एम्पायर का ही जिक्र क्यों होता है जो कि बहुत कम पीरियड के लिए। 3 ही राजा बने थे मेनली। पहला जो था चंद्रगुप्त जो कि फाउंडर था इस राज्य का, दूसरा जो था बिंदुसार जो कि अशोक का फादर था, चंद्रगुप्त का बेटा था, और तीसरे खुद अशोक थे। तो ये 3 राजा काफ़ी इंपॉर्टेंट हुए, लेकिन फिर भी हिस्ट्री में इनका इंपॉर्टेंट प्लेस है। क्यों है, क्योंकि याद करो जब नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी इंडिया के अंदर, उस टाइम हिस्टोरियंस ने इस एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा मेंशन किया था। और उस मेंशन करने के पीछे कुछ रीजन थे। जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे तो उनका एम था कि इंडियन लोगों का प्राइड खत्म किया जाए। दे वॉन्टेड टू ब्रेक द प्राइड ऑफ इंडियन पीपल एंड दे यूज टू शो दैट देयर सिविलाइजेशन इज सुपीरियर देन द इंडियन सिविलाइजेशन। वो बताते थे कि हमारे अलेक्जेंडर था, हमारे राजा इतने महान थे और तुम्हारे राजा हमारे आगे कुछ भी नहीं थे। एंड दे यूज टू से दैट इंडियंस आर नॉट एबल टू गवर्न देमसेल्व्स, दैट्स व्हाई वी आर रूलिंग देम। कि भारत के लोग अपने आप को राज नहीं कर सकते, इसलिए हम उन पर राज्य करने के लिए आए हैं। सो उनके इस मिथ को तोड़ने के लिए जो उस टाइम के नेशनलिस्ट लीडर थे इंडिया के और राइटर्स थे, दे स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द ग्रेट रूलर्स ऑफ इंडिया। और उन्होंने मेनली जो पिकअप किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को किया था। दैट आवर किंग्स यूज टू बी मच स्ट्रॉन्गर देन योर्स। इवन अलेक्जेंडर्स के जो सेनापति थे जिसका नाम था सेल्यूकस, उसको भी जो है चंद्रगुप्त ने हराया था। सो दैट वॉज टू काउंटर वेट द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश को जो है फेस करने के लिए, काउंटर वेट करने के लिए वो अक्सर मौर्यन राज्य का जिक्र करते थे।
और नेशनलिस्ट मूवमेंट में लोगों का प्राइड दोबारा से जगाने के लिए मौर्यन रूलर्स का जिक्र किया जाता था, इसलिए एम्पायर काफ़ी मजबूत और काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है और आज भी इसकी इंपॉर्टेंस है। यू कैन सी दैट आवर नेशनल एम्बेलम, जो नेशनल एम्बेलम है हमारे, जिसके ऊपर 4 शेर हैं, 3 दिखाई देते हैं, एक पीछे रह जाता है, वो भी जो है इसी साम्राज्य का था, इसी साम्राज्य का चिन्ह था जो कि सारनाथ से लिया गया था। अंडरस्टैंड। इसके अलावा आपने 200 रुपीज़ का नोट देख लो आज, उसके ऊपर सांची स्तूप बना हुआ है, वो सांची स्तूप भी इसी टाइम पे बना हुआ था। एंड जो अशोक चक्र है जो कि हमारे नेशनल फ्लैग के अंदर 24 पोक्स हैं उसके अंदर, वो भी इसी साम्राज्य से लिया गया है। मौर्यन एम्पायर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एम्पायर होता था। ये एक आइडेंटिकल इमेज है किसकी, राजा अशोक की। दिस इज अवर नेशनल एम्बेलम। तो ये मौर्यन एम्पायर की इंपॉर्टेंस दिखाता है कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये अशोक चक्र है जो कि हमारे नेशनल फ्लैग के ऊपर भी आता है, ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मौर्यन एम्पायर से हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली है, इसलिए हमारे लिए मौर्यन एम्पायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम्पायर माना जाता है। देन जब मौर्यन एम्पायर जो था वो कितने साल रहा, सिर्फ 150 ईयर्स। आफ्टर दैट इट गॉट डेक्लाइन। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब इतना बड़ा एम्पायर डेक्लाइन होगा तो उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे राज्य निकल गए थे। अंडरस्टैंड। जो लास्ट मौर्यन रूलर था उसका नाम था दशरथ, एंड ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज कमांडर पुष्यमित्र। पुष्यमित्र सुंग जो था उसने उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद में सुंग डायनेस्टी जो थी वो मगध पे रूल करने लगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कई छोटे छोटे राज्य रजवाड़े उसके बाद के टाइम में बने थे, तो उन छोटी छोटी किंगडम्स के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो द न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। अब जो नए राजा थे उसमें किंगशिप का एक नया विचार आया था कि राजा क्या है और राजा की इंपॉर्टेंस क्या है। अंडरस्टैंड। बाय 2nd century BC न्यू चीफडम एंड किंगडम एमर्ज्ड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। चोलाज, चेराज, पांड्याज, ये थी साउथ की किंगडम। स्पेशली तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में ये रूलर्स होते थे, चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। Several states including सातवाहन mainly used to rule in the central India। साकाज जो थे वो वेस्टर्न इंडिया में रूल करते थे, स्पेशली अराउंड गुजरात। और इसके अलावा उस टाइम के बाद में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी इंडिया का इमर्ज हुआ था। और उसके बाद में जो है 1st century BC के आसपास जो है एक नए राजा आ गए थे, कुशाणाज, एंड दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, और उन्होंने जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रूल करना शुरू कर दिया था। तो ये मेजर जो डायनेस्टी जो थी वो पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी है जो कि एंशिएंट इंडिया में होती थी। यू कैन सी दैट दिस इज अ हेडलेस स्टैचू। हेडलेस स्टैचू किस रूलर का है, ये माना जाता है कि कनिष्क का है। किसका है ये, कनिष्क। हु वॉज कनिष्का? कनिष्क वॉज द रूलर ऑफ कुशाना डायनेस्टी, और कुशान डायनेस्टी जो थी वो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आई थी, और वो जो है रूल करती थी। उसकी 2 कैपिटल थी, एक थी पुरुषपुर जो आजकल पेशावर कहा जाता है जिसको, उसका पहले नाम क्या था, पुरुषपुर। दूसरी इसकी जो कैपिटल थी वो मथुरा थी, माट एक जगह है मथुरा के पास, वहाँ इसकी कैपिटल होती थी। वहाँ पर जो है ये स्टेचू मिला है, और ऐसा माना जाता है कि ये स्टेचू किसका है, कनिष्क का है। तो आप देख सकते हैं ही इज हैवीली आर्मर्ड, इसमें जो है उसके पास हथियार है, किस तरह की ड्रेसिंग उसकी है। एंड दे यूज्ड टू कॉल देमसेल्व्स एज दी देवपुत्रा। तो जो कुशाना रूलर थे अपने आप को क्या कहते थे, देवपुत्रा, मीन्स देवताओं के पुत्र। सो दैट द पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देम, और जो उनकी बात है वो सारे लोग माने और राज्य को अच्छी तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर सकें। सो दे यूज्ड टू कॉल देमसेल्व्स एज दी देवपुत्रा। और देवपुत्रा का जो आइडिया उन्होंने कहाँ से लिया, चाइनीज रूलर से लिया। चाइनीज रूलर यूज्ड टू कॉल देमसेल्व्स एज दी सन ऑफ द हेवंस, एंड दे यूज्ड टू कॉल देमसेल्व्स एज द सन ऑफ द गॉड। चाइना का इन्फ्लुएंस क्यों आया इन पे, क्योंकि एक तो ये सेंट्रल एशिया से आए थे, दूसरा इन्होंने बुद्धिज्म को फैलाने का काम किया था। तो कनिष्क जो था ही आल्सो इन्वेडेड द पार्ट्स ऑफ तिब्बत एंड चाइना, और वहाँ पे ये इसने कॉन्कर कर लिया था तिब्बत और चाइना को। तो जो बुद्धिज्म बाद में चाइना में गया वो कनिष्क की वजह से गया था। कनिष्क चाइना के अंदर बुद्धिज्म लेके गया था। कनिष्क के टाइम बुद्धिज्म में काफ़ी चेंजेस भी आए थे। कनिष्क ने एक काउंसिल बुलाई थी बुद्धिज्म की, दैट इज कॉल्ड एज द 4th काउंसिल। और 4th काउंसिल जो थी वो कुंडलवन एक जगह है कश्मीर के अंदर, वहाँ पे इसने ऑर्गेनाइज की थी। और उसके बाद में बुद्धिज्म आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, महायान और हीनयान।
तो महायान ब्रांच जो थी वो इस टाइम पे आई थी कनिष्क के टाइम पे, और इसी महायान ब्रांच को जो है चाइना के अंदर कनिष्क ने फैलाया था। इसीलिए चाइना के अंदर महायान बुद्धिज्म है। और लेकिन जो श्रीलंका था, श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म फैलाया था अशोक ने, जब महायान था ही नहीं, इसलिए श्रीलंका में हीनयान है। तो जितने भी हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स के कंट्रीज हैं लाइक चाइना, कोरिया, जापान, सो देयर इज अ महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म, बट इन सदर्न कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड श्रीलंका, यहाँ पर जो है हीनयान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज चेंजेस इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड मीन्स रूरल एरियाज। गाँव में उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुए थे, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा अच्छी स्टोरियाँ नहीं मिलती, क्योंकि उस टाइम जो है गांव का इतिहास नहीं लिखा जाता था, मेनली राजाओं का इतिहास ही लिखा जाता। लेकिन गांव की हिस्ट्री जानने के लिए हमें इनडायरेक्ट सोर्सेज पे भरोसा करना पड़ता है। एंड मेनली दीज इंक्लूड जातका टेल्स। जातक कहानियाँ किससे रिलेटेड है? दे वर रिलेटेड टू दी बुद्धिज्म। ये माना जाता है कि बुद्धिस्ट के या बुद्धा के प्री बर्थ की कहानियाँ, कि बुद्ध का जो जन्म हुआ उससे पहले उसने कई जन्म इस दुनिया में लिए थे। उस टाइम कभी वो चरवाहा बना था, कभी वो राजा बना था, कभी वो एनिमल के रूप में जन्म उन्होंने लिया था। तो मेनली जातका टेल्स इज अबाउट दैट, और इसीलिए जातक टेल से हमें ऑर्डिनरी लोगों की कहानियों का पता चलता है। अदरवाइज जो मैक्सिमम हिस्ट्रीज एट दैट टाइम वर रिटन, दे वर रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रूलिंग क्लास, नॉट फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल। लेकिन जातक टेल गिव्स अस ग्लिम्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। जैसे कि एक ऐसी कहानी है पंचतंत्र की कहानी। पंचतंत्र की कहानी से हमें आम लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है, क्योंकि वो राजा के रिलेटेड कहानियाँ नहीं हैं।